So the name of my company is Epic Story. First of all, I'll tell why I named it as Epic Story. So epic means something which is very long. Like हम महाभारत के आगे एपिक लगाते हैं, एपिक महाभारत एंड एपिक रामायणा एंड एपिक हैरी पॉटर. एपिक का मतलब है बहुत लंबी, और वो स्टोरी जो बहुत लंबी है, ऐसी स्टोरी वही होती है जो शादी के बाद जो अटूट है. So we called the name Epic Story because we always wanted to shoot weddings throughout our life. When we started, we were very sure that we have to do weddings. And initially, when I jumped into this field, I was an engineer back then. When I jumped into this field, I knew that it is something like, Indian weddings are a grand affair. Like one person cannot handle everything. So I have to build a team who can be everywhere in the wedding and shoot all the perspective of wedding. So I was pretty sure that I am alone won't be able to enough to shoot everything in a wedding. So I built my team. I trained everyone like how we should approach to a wedding. And that's how we are doing this from last couple of years, and we have so many happy clients. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर छतरपुर से हूँ. तो मेरा लाइफ में कभी फ़ोटोग्राफ़र या ऐसा बनने का कुछ दूर दूर तक सपना नहीं था. फिर जब मैं कॉलेज में था, मैंने इंदौर से इंजीनियरिंग की. मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट भी की. तो जब मैंने एक कैमरा ख़रीदा हुआ था, तो जब कॉलेज में फेयरवेल पार्टीज़ हुआ करती थी, तो आई वॉज कॉल्ड टू शूट फोटोग्राफ्स ओवर देयर, and that's how I started. So when I was in college, a lot of friends used to tell me कि you are not made for jobs, like 9 to 5 job तेरे बस का नहीं है, and you are really good at photography, so you should do that. And I completed my engineering in 2016, and after that I shifted to Bombay. I've started working with a lot of company as a freelance photographer. कभी मेरे मन में लालच नहीं थी कि like because of Prince I will get to know lot of celebrities और हमारा नाम होगा. I just genuinely want to shoot their wedding story in a such a way that they can remember for always. वो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं, क्योंकि when lot of photographer अप्रोच टू द सेलिब्रिटी, उनके क्वेश्चन ये थे कि यार आप कौन सेलिब्रिटी आएगा, कौन नहीं आएगा, हमें क्या फ़ायदा होगा. एंड दे वर रियली हैप्पी अबाउट इट कि यार आपने ये सब चीज़ें नहीं पूछी, आपको हमसे मतलब है कि हमारी वेडिंग आप कितने अच्छे से शूट करोगे, रादर देन कि कौन सेलिब्रिटी आएगा. दैट वाज अ पर्सनल टच दैट दे रियली लाइक अबाउट अस. एंड in 2018 we shoot wedding of Prince Narula's and Yuvika Chaudhary, and after that there's no turning back. Wedding photography, why I choose wedding photography other than other forte like fashion, because I really love to capture emotions. Like I trained my team in such a way that we have a very very basic understanding. Like when bidai is happening, for example, when bidai is happening, so we make sure that we shoot from far away, and we make sure we capture those emotions. In fashion photography and other genre of photography, like it's very intrigued, and I don't feel कि I can connect to the people. It's more like in wedding photography your assignment doesn't look like an assignment. You get to know a lot of people, friends, family, you interview them, you get to know their personal life, and that's how you narrate a story with all those story what you have observed throughout the wedding. हाँ, करिश्मा तन्ने की वेडिंग में एक मैं आपको मोमेंट दिखाऊंगा अभी. करिश्मा तन्ना ने एक सरप्राइज परफॉर्मेंस दिया था. सिंस वरुण जो है वो साउथ इंडियन है, करिश्मा है जो गुजराती हैं, तो वरुण को एक डांस बहुत पसंद है, ठीक है, मतलब उनको डांस बहुत पसंद है. करिश्मा ने उनके लिए एक स्पेशल गाने पे डांस किया था. उस गाने का नाम था दिल ले गई कुड़ी गुजरात की. तो उनके उसका जो BTS है ना, हमने उस जर्नी को देखा है. मतलब करिश्मा इतनी एक्साइटेड थी कि मतलब जहाँ भी वो मेरे को बोलती थी, हिमांशु ठीक है ना, मैं ऐसे प्रिपेयर कर रही हूँ, वरुण को अच्छा लगेगा ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो किसी को नहीं पता है. एक गाना है कि घुंघरू टूट गए,
करिश्मा तन्ना और वरुण पहली बार उस गाने के कारण मिले। ये गाना है कि घुंघरू टूट गए, वो एक ऐसा गाना है जिसके कारण उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई, और उसी गाने पे दोनों ने उनकी वेडिंग, मतलब वरुण ने सरप्राइज परफॉर्मेंस दिया था करिश्मा के लिए और दोनों ने उस पर फिर डांस किया था। ये एक है जो मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा किसी को भी पता है कि करिश्मा और वरुण मिले कैसे थे एग्जैक्टली। एक न्यू ईयर पार्टी में वो लोग मिले थे जहाँ की म्यूज़िक हैंडल वरुण कर रहे थे, मतलब जैसे इंटरनल पार्टी में नहीं होता कि कोई अपने फ़ोन से म्यूज़िक प्ले करता है, तो वहाँ वो तो वरुण को काफ़ी पसंद आई थी करिश्मा, तो वरुण को पता भी नहीं था कि ये सेलिब्रिटी हैं। उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन सा गाना सुनोगी, पार्टी चली, तो उन्होंने कहा कि दिल घुंघरू टूट ही गया, आप बजा दो। और जब उन्होंने वो बजाया वहाँ से वो मिस हो गई थी, वो जा चुकी थी। तो वो गाना से रिलेट, मतलब फिर जब रात में फिर 2-3 बजे करिश्मा ने वरुण को कॉल किया किसी फ्रेंड के थ्रू कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गाना प्ले करने के लिए बोला था और मैं वहाँ से लेफ्ट ओवर हो गई, आपको बता भी नहीं पाई। दैट्स हाउ दे स्टार्टेड एंड आफ्टर दैट दे मेट फॉर अ कॉफ़ी डेट। फिर वहाँ पे करिश्मा और वरुण मतलब मिले। वरुण को पता भी नहीं था कि ये सेलिब्रिटी है। वहाँ पे बहुत लोग आने लगे, फ़ोटो खिंचाने लगे, तो वरुण को वहाँ पता चला कि आर यू एरी सेलिब्रिटी, वाई लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड टेकिंग फोटो विद यू। तो दैट्स हाउ देयर जर्नी स्टार्टेड। आई थिंक वी आर वन ऑफ रेयर पीपल हु नोज दिस। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा करिश्मा और वरुण के उसमें, करिश्मा तन्ना के फादर काफ़ी जल्दी एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। तो ये उन्होंने हमें बताया था कि करिश्मा की लाइफ में हमेशा एक मैन की कमी थी। उसकी बहन, उसकी मम्मी, कोई मैन था ही नहीं, चाचा वाचा कोई भी ऐसा था नहीं। तो जब वरुण उनकी लाइफ में आया ना, और जब उनके पापा मतलब लास्ट स्टेज में थे, तब उन्होंने बोला था कि मैं तेरे लिए कोई भेजूँगा। तो उन्होंने जब वरुण उसकी लाइफ में आया ना, उसके बाद करिश्मा की लाइफ ऐसी चेंज करी। आई एम नॉट जस्ट टेलिंग बिकॉज दे आर सेलिब्रिटी, बट उनका ह्यूमन इमोशन, उनकी स्टोरी इतनी इमोशनल है। लाइक यू नो, आई वॉज वेरी टच्ड एंड आई वॉज हैविंग अ टीयर इन माई आइज व्हेन शी वॉज टेलिंग मी कि एट अ टाइम शी वॉज अ सेलिब्रिटी, ठीक है, बट उनकी जो पर्सनल लाइफ थी ना, वो इतनी ज़्यादा मैस थी। एंड व्हेन वरुण केम इन टू देयर लाइफ, हर लाइफ चेंज्ड एंड शी फेल्ट लाइक कि पापा ने किसी को भेजा है। सो जो उनके एक मिसिंग एलिमेंट था उनकी लाइफ में, अगर आप एक वीडियो देखोगे जो हमने बताया था, where Karishma had mentioned कि Varun is like a missing puzzle of her life. Once he came into her life, her life is complete. कुछ moments ऐसे होते हैं where you feel like आप इंटरव्यू ले रहे हो, देख रहे हो इमोशंस, और देख के लगता है कि वाओ, this is what we live for.